to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss CCS Conduct Rules 1964. It is part 3. In this part, I will discuss Rule 12 to Rule 13A. Rule 12 subscriptions, Rule 13 gifts, Rule 13A dowry. In this part, I will discuss 30 MCQs and also you know about the pattern of descriptive questions. It is useful for all central government exams. Definitely this part would be interesting one. Each and every rule I will discuss very lucidly and briefly, and also through discussion also easily you can attempt any type of descriptive question related to these rules. 30 MCQs also I will discuss, and it is the latest pattern, and you can find different type of questions, and easily that type of question will be coming in the examination. Easily we can attempt it. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Please subscribe my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. You see my WhatsApp number, it is 8327782034. If any query is there, you can contact with me. My Telegram channel, first link t.me/BAPI2034. You can join it, and another channel is there. It is t.me/ASIT2034. So please join my Telegram channel so that you can know about my latest videos. So definitely this session would be interesting one. Now I am going to discuss CCS Conduct Rules 1964, Rule 12 to Rule 13A. First you see Rule 12. It is related to the subscriptions. Rule position is very important one. So you see Rule 12 subsection 1, no asking for contributions. A government servant cannot go around asking people for donations, contributions or collections of any kind. ये तो very common है. ये फर्स्ट सबसेक्शन है. As a government servant, our role is to provide qualitative service to the public. The government servants, they should not ask any type of donation or any type of contribution. It means ultimately they should not raise fund from the public. If they raise fund, you know, they lose their integrity. Public suspect over the government servants. Okay. So the government servants lose integrity, lose transparency, lose honesty. So that any government servant should not ask people for donations. ये सबसेक्शन 1 बोल रहा है. नेक्स्ट वन सेकेंड रूल 12 का सेकेंड सबसेक्शन, नो एक्सेप्टिंग कंट्रीब्यूशंस. He or she cannot accept any such contributions, whether money or items or from others. सपोज नो एक्सेप्टिंग कंट्रीब्यूशंस में क्या है, जो भी आप चाहे कंट्रीब्यूशंस को रिसीव करो मनी में कि एनी आइटम्स में. ओके, तो चाहे मनी में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आइटम्स में भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते. सो दोनों. तो इट मीन्स क्वेश्चन इज आस्किंग, सपोज asking contributions in suppose in terms of items, no. So the government servant, it means should not raise contributions in the form of money or in the form of items. Clear? It is the second subsection of Rule 12, right? Next one, no involvement in fund raising. The officer cannot participate, help or be associated in any way with raising money or collecting goods for any purpose, चाहे charity, events, social causes, etc. जो ये जो purposes है, on the name of charity, on the name of events, on the name of social causes, the officers they cannot participate. जो government servants, they cannot participate, they cannot help, they cannot associate, okay, in related to the raising of funds or collection of funds for any purpose like this. So it is prohibited one. ओके, तो तीन चीज यहां पर देखिए. पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते फंड रेजिंग में, हेल्प नहीं कर सकते कि एसोसिएट नहीं कर सकते. तो इट मींस द गवर्नमेंट सर्वेंट्स दे शुड नॉट पार्टिसिपेट,
they should not help, they should not associate related to the raising of funds on the name of charity, ki on the name of events, ki on the name of social causes, right? नेक्स्ट वन कवर्स ऑल टाइप ऑफ कलेक्शंस, ऑल टाइप ऑफ कलेक्शंस चाहे कैश में हो कि चाहे काइंड में हो, ठीक है। दिस रूल अप्लाइज वेदर द कलेक्शन इन कैश, इट मीन्स इन मनी, और काइंड, गुड्स, मटेरियल्स, आइटम्स, सो सभी प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है, एक्सेप्शन ओनली विथ प्रायर अप्रूवल। कभी कभी कुछ केस में क्या है, प्रायर इंफॉर्मेशन, सपोज प्रायर परमिशन चाहिए। सपोज द गवर्नमेंट सर्वेंट, जैसे एक है नेशनल डिफेंस फंड, सपोज नेशनल डिफेंस फंड में सपोज एनी गवर्नमेंट ऑफिसर वांट टू रेज फंड, फर्स्ट वन प्रायर परमिशन चाहिए कंसर्न मिनिस्ट्री का। तो कंसर्न मिनिस्ट्री चेक करेगा कि नेशनल डिफेंस फंड के लिए फंड रेज होगा, तो यदि मिनिस्ट्री सोचता है ये ठीक है, तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है। देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है कि आप कर सकते हो। तो यदि गवर्नमेंट प्रायर अप्रूवल देता है, प्रायर परमिशन देता है कि जो कंसर्न अथॉरिटी है, रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है, वो प्रायर परमिशन देता है, कुछ केस में वो तो एनालाइज करेंगे ना। सपोज आप गवर्नमेंट सर्वेंट, सपोज गवर्नमेंट ऑफिसर्स दे वांट टू रेज फंड एंड दे नीड परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओके, इन प्रायर मैनर। सो व्हेन दे अप्रोच टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको एनालाइज करेगा कि ये जो फंड रेज होगा किस लिए होगा, किस पर्पज के लिए होगा, फॉर व्हाट इंटेंशन, फॉर व्हाट पर्पज, कि ये जो होगा सपोज एनी टाइप ऑफ बेनिफिट गेटिंग बाय द पब्लिक, कि सपोज ड्यू टू दिस एनी वेलफेयर ऑफ द पीपल कैन बी इंक्रीज्ड और नॉट। तो उसको एनालाइज करने के बाद ही गवर्नमेंट परमिशन देगा कि रेस्पेक्टिव अथॉरिटी परमिशन देगा। तो इस केस में क्या है, यदि प्रायर अप्रूवल, यदि सपोज प्रायर परमिशन चाहिए, ठीक है, यदि फंड रेज किया जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट मैटर में, तो प्रायर परमिशन चाहिए। यदि गवर्नमेंट अप्रूवल देता है तो फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और कुछ चीज के ऊपर देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, द मेंबर्स ऑफ ए सर्विस यूनियन freely collect subscriptions among themselves for welfare activities of union। तो यहां पर not required previous sanction of the government। जैसे सर्विस यूनियन है, सर्विस यूनियन मेंबर से सब्सक्रिप्शन कलेक्ट कर रहा है क्योंकि फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ यूनियन, ओके, जो सर्विस यूनियन का वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए सब्सक्रिप्शन कलेक्ट हो रहा है, तो उसमें प्रायर सैंक्शन का जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इस पर्पज में। अनदर वन है फ्लैग डे कलेक्शन। देखिए फ्लैग डे कलेक्शन में भी कोई परमिशन नहीं चाहिए। यहां पर क्या है, फ्लैग डे कलेक्शन में देयर इज नो नीड ऑफ प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या है, वॉल्यूंटरीली गवर्नमेंट ऑफिसर्स दे कैन रेज फंड, इन ऑफिशियल पर्पजेस एक्चुअली दे कैन नॉट रेज फंड। ऑफिशियल मैटर ये कुछ लिंक नहीं है। फ्लैग डे कलेक्शन में कोई प्रीवियस सैंक्शन गवर्नमेंट का नहीं चाहिए, ओनली वॉल्यूंटरीली ऑफिशियल्स दे कैन रेज फंड, ठीक है। हैव यू क्लियर अंडरस्टूड? बट नॉट ऑफिशियल पर्पज दे रेज फंड, सपोज रिलेटेड टू द फ्लैग डे कलेक्शन, वॉल्यूंटरीली वो कलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहां पर दे दे फंड रेजिंग ड्राइव एज प्राइवेट वॉल्यूंटियर्स नॉट इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। तो फ्लैग डे कलेक्शन में कोई प्रायर सैंक्शन नहीं चाहिए गवर्नमेंट का, मगर यहां पर प्राइवेट वॉल्यूंटियर्स के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफिसर्स फंड रेज करेंगे, बट नॉट इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन एक है नेशनल डिफेंस फंड में बोला था, नेशनल डिफेंस फंड के लिए फंड रेज करना चाहते हो तो यहां पर प्रायर परमिशन चाहिए, ओके। प्रायर परमिशन फर्स्ट द कंसर्न मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अकॉर्ड सैंक्शन टू द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट। तो कंसर्न मिनिस्ट्री सैंक्शन किसको देगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो कंसर्न ऑफिशियल को अलाउ करेगा कि आप फंड रेज कर सकते हो ऑन द नेम ऑफ नेशनल डिफेंस फंड। तो इसमें भी डायरेक्टली नहीं होगा। इस केस में नेशनल डिफेंस फंड में बताया, इस केस में क्या है, प्रायर सैंक्शन चाहिए मिनिस्ट्री का, कंसर्न मिनिस्ट्री यदि सैंक्शन करता है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को करता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्रीज में ऑल्सो एम्पावर HODs, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, to accord similar sanction to such government servants
वर्किंग अंडर देम as may be required to assist them. ठीक है, तो मिनिस्ट्री परमिशन किसको देगा? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को. देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसको सैंक्शन देगा? गवर्नमेंट सर्वेंट्स को. ठीक है, फंड कलेक्शन में असिस्ट करने के लिए. ठीक है, तो इसमें ओवरऑल हम देखा नेशनल डिफेंस फंड केस में इट मीन्स प्रायर सैंक्शन चाहिए. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट देखिए, इसमें और एक दिया है कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इसमें आप फंड रेज नहीं कर सकते. कलेक्शन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स नॉट परमिसिबल फॉर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड. ओके, यदि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो फ्रीली, आप पर्सनल कंट्रीब्यूशंस कर सकते हो, पर्सनल कंट्रीब्यूशंस आप कर सकते हो ये मेमोरियल फंड को, मगर गवर्नमेंट एक्चुअली इन दिस केस गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ. ओके, गवर्नमेंट डज नॉट गिव परमिशन ओके टू रेज फंड्स बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड. आप पर्सनल कंट्रीब्यूशन कर सकते हो. ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, अब थोड़ा देखिए क्या रीजन है. नेक्स्ट वन, पार्टिसिपेशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स परमिसिबल फॉर फंड रेजिंग एफर्ट्स टू नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी के लिए कोई प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए. ओके, तो जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन है, जो ऑर्फन्स है, उनके लिए फंड यूज होता है. ओके, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी केस में क्या है, जो कम्युनल वायलेंस में जो दो ऑर्फन चिल्ड्रेन की यानी डेस्टिट्यूट चिल्ड्रेन की any other people suppose severely affected, then they can get benefit through this fund. तो उसके लिए कोई प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए. मगर इसमें ऑफिशियल कैपेसिटी में भी आप फंड रेजिंग नहीं कर सकते. तो आज प्राइवेट वॉलंटियर आप फंड रेज कर सकते हो. ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है फ्लैग डे, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, कोई प्रायर सैंक्शन नहीं चाहिए गवर्नमेंट का. इसमें नॉट एज ऑफिशियल कैपेसिटी बट आज प्राइवेट वॉलंटियर आप फंड रेज कर सकते हो. ठीक है, मगर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के लिए आप फंड गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगा, आप पर्सनल कंट्रीब्यूशन कर सकते हो. और मैं एक बताया नेशनल डिफेंस फंड, इसमें प्रायर परमिशन चाहिए कंसर्न मिनिस्ट्री का. तो कंसर्न मिनिस्ट्री सैंक्शन करेगा तो एचओडी को, तो एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अदर गवर्नमेंट ऑफिसर अलाउ करता है कि आप फंड रेज करो, इट मीन्स असिस्ट करो. तो ये चैनल है. ठीक है, क्लियर. तो ये सब्सक्रिप्शंस के ऊपर मैं डिटेल्स बताया. तो कुछ केस में प्रायर सैंक्शन चाहिए और गवर्नमेंट उसको एनालाइज करता है कि किस पर्पज के लिए फंड रेज होता है. जैसे नेशनल डिफेंस फंड में बताया, तो वो एनालाइज करेगा. यदि गवर्नमेंट को लगेगा हाँ एक्चुअली जो फंड रेज हो रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, ओके, कि सपोज एक्सटेंडिंग हेल्प टू द डेस्टिट्यूट चिल्ड्रेन की यानी मिजरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की ऑर्फन्स, तो ये हो सकता है. मगर कुछ केस में प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट देता है. ठीक है, अदरवाइज द गवर्नमेंट सर्वेंट्स इट मीन्स दे डू नॉट रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक. ठीक है, क्लियर. तो अभी रूल 13 को चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल पोजीशन देखिए गिफ्ट्स के ऊपर है. ठीक है, रूल 13 है, गिफ्ट्स रिलेटेड है. रूल पोजीशन को याद कीजिए. इसमें भी अराउंड 5 सबसेक्शंस है. तो फर्स्ट सबसेक्शन है, इसमें जनरल रूल है जो नो गिफ्ट्स अलाउड. ए गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट. ये कॉमन बोल रहा है कि जो रूल 13 सबसेक्शन 1 ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता. ओके, तो ये भी है, he also cannot allow his family members or any person acting on his behalf to accept a gift for him. Only उसके लिए नहीं है, वो तो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा गवर्नमेंट सर्वेंट, बट ऑन बिहाफ ऑफ हिम सपोज एनी उसका कोई रिलेटिव है, कोई फैमिली मेंबर्स है, वो भी गिफ्ट नहीं ले सकते. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जनरल रूल में आता है, नो गिफ्ट्स अलाउड. Clear. Now government servant it means must not accept gift, or on behalf of the government servant also family members or any other relatives also they cannot accept gift. ठीक है, क्लियर. तो ये 13 सबसे ये रूल पोजीशन को याद रखना है. रूल पोजीशन के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है. चलो ठीक है. अच्छा, गिफ्ट्स में क्या क्या काउंट होगा, व्हाट काउंट्स एज ए गिफ्ट. यहां पर देख लीजिए, ये गिफ्ट इंक्लूड्स मोर देन जस्ट फिजिकल आइटम्स. अच्छा, गिफ्ट में क्या क्या होगा, फ्री ट्रांसपोर्ट वो भी गिफ्ट में आएगा, फ्री होटल स्टे और फ्री लॉजिंग,
फ्री फूड और फ्री बोर्डिंग, एनी फ्री सर्विस, एनी मॉनेटरी और फाइनेंशियल बेनिफिट, ये सब गिफ्ट में इंक्लूड होता है। सपोज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आएगा, ये सब गिफ्ट में इंक्लूड होगा। नॉट ओनली फूड आइटम्स कि नॉट ओनली मॉनेटरी बेनिफिट्स, ट्रांसपोर्ट, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग, की फ्री फूड, की फ्री सर्विस, कि एनी मॉनेटरी और फाइनेंशियल बेनिफिट, ये सब गिफ्ट में आएगा। अच्छा, एक्सेप्शंस क्या है? क्या हम गिफ्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे? दिस डज नॉट, एक्सेप्शंस देखिए, दिस डज नॉट इंक्लूड थिंग्स गिवन बाय नियर रिलेटिव्स और पर्सनल फ्रेंड्स हु हैव नो ऑफिशियल डीलिंग्स विद द गवर्नमेंट सर्वेंट। ये गिफ्ट में इंक्लूड नहीं होगा। वो बोल रहा है यदि यही चीज जो काउंट्स हुआ है गिफ्ट में, चाहे फ्री ट्रांसपोर्ट हो, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग हो, फ्री सर्विस हो, कि एनी मॉनेटरी फाइनेंशियल बेनिफिट है, यदि आपका कोई रिलेटिव्स, नियर रिलेटिव्स और पर्सनल फ्रेंड्स देते हैं और उनके साथ कोई आपका ऑफिशियल डीलिंग्स नहीं है, तो वो गिफ्ट में काउंट नहीं होगा। तो क्लियर हो गया क्या गिफ्ट में काउंट होगा, क्या गिफ्ट में काउंट नहीं होगा। मगर नहीं होगा केस में जो एक्सेप्शन है, वहां पर नियर रिलेटिव्स और फ्रॉम पर्सनल फ्रेंड्स, इफ यू रिसीव द अबव थिंग्स बट दे आर हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग विद द कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, जो नियर रिलेटिव से कि पर्सनल फ्रेंड्स से जो अबव थिंग्स आप बेनिफिट्स लिया, तो उनके साथ आपका कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, तो वो गिफ्ट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। इसमें कुछ नोट में देखेंगे, व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड ए गिफ्ट का, किसको हम गिफ्ट नहीं बोलेंगे। द फॉलोइंग कैजुअल और सोशल कॉर्टेसीज आर नॉट ट्रीटेड एज गिफ्ट। क्या है? ऑकेजनल मील्स, ऑकेजनली कोई आपको मील प्रोवाइड कर दिया, कि कोई ऑकेजनली कोई फ्री राइड दे दिया, कोई जनरल सोशल हॉस्पिटलिटी अमंग फ्रेंड्स, तो ये सब गिफ्ट्स में कंसिडर्ड नहीं होता है। occasional meals, suppose someone offer occasional meals, ki someone suppose lift you related to the free ride, कि suppose any general hospitality among the friends, ये सब गिफ्ट में कंसिडर नहीं होता है। ठीक है, ये एक नोट 1 है, क्लियर। और एक नोट 2 है, आप देख लीजिए, क्या आपको अवॉइड करना है, व्हाट शुड बी अवॉइडेड। ए गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट अवॉइड एक्सेप्टिंग लेविस और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलिटी, ओके, फ्रॉम इंडिविजुअल्स, कंपनीज, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, और जिनके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग्स है। सपोज कोई इंडिविजुअल्स के साथ ऑफिशियल डीलिंग है, कोई कंपनी के साथ ऑफिशियल डीलिंग है, कोई कमर्शियल इंडस्ट्रियल फर्म के साथ ऑफिशियल डीलिंग है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, और उनसे आप फ्रीक्वेंटली बार बार कुछ हॉस्पिटलिटी फैसिलिटी ले रहे हो और कुछ सपोज लैविश फैसिलिटीज ले रहे हो, तो वो सबको आपको अवॉइड करना है। ओके, तो यहां पर दे दिया, यदि फ्रीक्वेंट मीन्स रेगुलरली यू आर गेटिंग हॉस्पिटलिटी, रेगुलरली यू आर गेटिंग लैविश मील, रेगुलरली, मगर इनके साथ क्या है, आपका ऑफिशियल डीलिंग है। ठीक है, इसको आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। कोई इंडिविजुअल के साथ ऑफिशियल डीलिंग है, कंपनी, कमर्शियल फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन, उनके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, और उन्हीं से ही आपका फ्रीक्वेंटली यू आर टेकिंग हॉस्पिटलिटी और you are getting lavish meal, ओके, कि फ्रीक्वेंटली यू आर गेटिंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, तो ये इसको अवॉइड करना है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। अभी सेकेंड पार्ट में आएंगे। इसमें क्या है, कुछ लिमिट है, जो 13 सबसेक्शन 2, इसमें क्या है, सोशल, ये देखिए बहुत ही, सोशल रिलीजियस ऑकेजन्स अलाउड विद इन लिमिट्स। इसमें गिफ्ट्स अलाउ है, मगर एक लिमिट के अंदर अलाउ है। लिमिट से ज्यादा होगा तो आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा। अच्छा, सोशल रिलीजियस ऑकेजन्स जैसे वेडिंग है, एनिवर्सरी है, फ्यूनरल है, एनी अदर रिलीजियस फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें वेयर गिफ्ट इज नॉर्मल, तो गिफ्ट तो आपको मिलेगा, कहां से मिलेगा, जैसे नियर रिलेटिव से, पर्सनल फ्रेंड से, क्योंकि आप तो गिफ्ट रिसीव करेंगे। ये सब जो सोशल एंड रिलीजियस ऑकेजन्स, क्लियर हो गया, चाहे वेडिंग, चाहे एनिवर्सरी, चाहे फ्यूनरल, चाहे रिलीजियस फंक्शंस, डेफिनेटली नॉर्मली यू आर गेटिंग गिफ्ट्स फ्रॉम नियर रिलेटिव्स। ये देखिए, नियर रिलेटिव्स और फ्रॉम द पर्सनल फ्रेंड्स, मगर एक लिमिट है। लिमिट क्या है, ठीक है, एक लिमिट का टेबल में बना दिया। ग्रुप ए के लिए जो भी गिफ्ट्स आप रिसीव कर रहे हो सोशल रिलीजियस फंक्शन में, ग्रुप ए ऑफिसर के लिए, फ्रॉम योर नियर रिलेटिव्स एंड फ्रॉम योर पर्सनल फ्रेंड्स, वो अप टू ₹25,000 तक आपको रिपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। इससे ज्यादा होगा आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा।
ठीक है। ग्रुप बी ऑफिसर अप टू ₹15,000, देयर इज नो नीड टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। मगर 15,000 से ज्यादा होगा तो आपको रिपोर्ट करना होगा। सिमिलरली ग्रुप सी अप टू ₹7,500, देयर इज नो नीड टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, बट एक्सीड देन दैट यू मस्ट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। तो इसमें ये नहीं है, जो सोशल एंड रिलीजियस फंक्शन से आप गिफ्ट रिसीव कर सकते हो फ्रॉम योर नियर रिलेटिव्स एंड फ्रॉम योर पर्सनल फ्रेंड्स, बट विद इन लिमिट। लिमिट से क्रॉस होगा तो मस्ट रिपोर्ट, यहां पर देखिए, टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये 13 सबसेक्शन 2 बोल रहा है। क्लियर? इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। चलो नेक्स्ट जनरल गिफ्ट्स आ जाएगा। यहां पर जनरल गिफ्ट्स, अदर गिफ्ट्स नॉट सोशल और रिलीजियस ओकेजन्स। यहां पर ऐसा नहीं है कि जो सोशल रिलीजियस जैसे वेडिंग है, एनिवर्सरी है, फ्यूनरल है, अदर रिलीजियस फंक्शन, वो लिमिट था। मगर नॉर्मली जो अदर गिफ्ट्स होता है, जनरल गिफ्ट्स, तो उसमें क्या होगा, एक लिमिट है। वो लिमिट क्रॉस होगा तो आपको गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन चाहिए। वहां पर तो आप रिपोर्ट करोगे, मगर यहां पर ये जनरल गिफ्ट्स मीन्स यहां पर हम क्या कंसिडर करेंगे कि नॉट सोशल और रिलीजियस ओकेजन्स। आपको कुछ जनरल गिफ्ट मिल रहा है और कुछ लिमिट से एक्सीड हो रहा है, तो आपको गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन चाहिए, प्रायर परमिशन चाहिए। तो यहां पर दे दिया, देखिए, फॉर ऑल अदर टाइप ऑफ गिफ्ट, जनरल गिफ्ट्स, okay, a government servant cannot accept them without government sanction if the value is above the following limits. sanction is required, government sanction यहां पर चाहिए, लिमिट क्रॉस होगा। अच्छा, ग्रुप ए एंड बी ₹5,000, अप टू ₹5,000 कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि गिफ्ट मोर देन 5,000 होता है, जो जनरल गिफ्ट, तो गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन चाहिए, सैंक्शन रिक्वायर्ड। ओके, सिमिलरली ग्रुप सी एंड डी सैंक्शन चाहिए। ग्रुप सी एंड डी लिमिट इज अप टू 2,000, अप टू 2,000 प्रॉब्लम नहीं है। यदि जनरल गिफ्ट का वैल्यू मोर देन 2,000 होगा तो गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। ये 13, ये जनरल गिफ्ट के ऊपर है, 13 सबसेक्शन 3। ठीक है। अच्छा, इसका फोर्थ में क्या है, सपोज ए गवर्नमेंट सर्वेंट बीइंग ए मेंबर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन और अदरवाइज, सपोज आप एक मेंबर हो इंडियन डेलीगेशन का और आप अब्रोड विजिट किया और वहां पे आप कुछ गिफ्ट रिसीव किया आज फॉरेन डिग्निटरीज, तो वो आ जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन। एक है रूल्स, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, एक्सेप्टेंस और रिटर्न ऑफ गिफ्ट्स और प्रेजेंटेशन, रूल्स 2012। याद रखिए, ये अभी लेटेस्ट है, ये तो चेंज होता रहता है, अमेंडमेंट होता रहता है, मगर अभी है रूल्स 2012। तो यदि गवर्नमेंट सर्वेंट कोई इंडियन डेलीगेशन का मेंबर है और फॉरेन कंट्री विजिट किया और वहां पर सपोज कि गिफ्ट रिसीव किया आज फॉरेन डिग्निटरीज, तो उसका जो प्रोविजन है किस रूल के आधार पर आता है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इसको याद रखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट और रिटेंशन ऑफ गिफ्ट्स और प्रेजेंटेशंस, रूल्स 2012 में जो प्रोविजन है, उसी प्रोविजन के आकार में वो गिफ्ट रिसीव होगा, रिटर्न होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये रूल्स को। ठीक है, ये 13 सबसेक्शन 4 ये बोल रहा है। ठीक है, और उसका लास्ट सेक्शन है जो 13 सबसेक्शन 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है ना, गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन फार्म्स, ओके, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये बहुत है, 2 पॉइंट आप देखिए। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम ए फॉरेन फार्म। कंडीशन क्या है, किस फॉरेन फार्म से आप गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते ना, जिस फॉरेन फार्म के साथ गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। द फार्म हैज ए कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिस फार्म का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसी फार्म से आप कोई भी गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते। और क्या है, जिस फार्म के साथ कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट का ऑफिशियल डीलिंग है। ये 2 चीज आप याद रखिए। ओके, कॉमन रूल बोला कि गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन फार्म स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन फार्म से गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते, मगर 2 कंडीशन है। यदि वो फार्म के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट है, वहां से आप गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते। और यदि कंसर्न फॉरेन फार्म के साथ गवर्नमेंट ऑफिस कुछ ऑफिशियल डीलिंग है, तो उससे आप गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, इन अदर केसेस कोई फॉरेन फार्म का कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ, और कोई फॉरेन फार्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और वहां पर आपको
सपोज गिफ्ट मिलता है तो सब रूल 3 क्या है, जैसे ग्रुप अप टू 5,000 आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है, मोर देन दैट मींस प्रायर परमिशन चाहिए, और सी एंड डी एम्प्लॉइज 2,000 है, तो वो सब रूल 3 तो मैं अभी डिस्कस किया, ठीक है। इफ द फर्म इज फॉरेन बट हैज नो ऑफिशियल डीलिंग्स, कि हैज नो कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन आप गिफ्ट रिसीव करोगे, मगर विद इन लिमिट जो 13 सबसेक्शन 3 में है, अप टू 5,000 ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स अप टू 5,000 रिसीव करोगे, तो वहां पर प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, मगर उससे ज्यादा होगा प्रायर परमिशन चाहिए, ठीक है। तो ये 5 सबसेक्शंस था, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। यहां पर दिया है कि एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ ट्रांसफर, यदि आपका ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में आप गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं कि नहीं। तो जब आपका ट्रांसफर होगा, सपोज आपका जो कलीग्स है, ठीक है, वो आपको सपोज गिफ्ट देंगे, कोई एक फेयरवेल फंक्शन होगा, आपको गिफ्ट देंगे, मगर एक लिमिट, वही लिमिट जो है जनरल गिफ्ट में आता है, एक वो जो गिफ्ट का वैल्यू होगा वो बेसिकली क्या होगा, इसमें ट्रिपलिंग वैल्यू मैं बताया था अभी, जैसे ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर जो अप टू ₹5,000 जो गिफ्ट का वैल्यू होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि इससे ज्यादा होगा परमिशन चाहिए, तो वही इफ ए गिफ्ट अबव ट्रिपलिंग वैल्यू, ये ग्रुप ए एंड बी के लिए 5,000 है, और ग्रुप सी एंड डी के लिए कितना होता है ₹2,000 अप टू ₹2,000, इसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। मगर यदि आप ट्रांसफर के लिए जो फेयरवेल फंक्शन है और आपका कॉलीग्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं और गिफ्ट का वैल्यू मोर देन ₹5,000 है, और आप एक ग्रुप ए की ग्रुप बी ऑफिसर हो, उस केस में आपको परमिशन चाहिए, ठीक है। ग्रुप सी एंड डी केस में जैसे अप टू ₹2,000 प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट का परमिशन, प्रायर परमिशन चाहिए, ठीक है, क्लियर। और एक रिटायरमेंट केस में एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ रिटायरमेंट। अच्छा, रिटायरमेंट सुपरएनुएशन टाइम में वो भी आपका कॉलीग्स फेयरवेल फंक्शन कंडक्ट करेंगे और वहां पर भी आपको गिफ्ट देंगे, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्शन इन प्रिंसिपल, ऐसा नहीं कि आप गिफ्ट रिसीव नहीं करेंगे, मगर भाई यदि ट्रिपलिंग वैल्यू होना चाहिए गिफ्ट का वैल्यू, यदि गिफ्ट का वैल्यू ग्रेटर देन ग्रुप ए बी ऑफिसर्स के लिए ग्रेटर देन ₹5,000, ग्रुप ए बी ऑफिसर्स के लिए मोर देन 5,000 होगा तो परमिशन जरूरी है, प्रायर परमिशन जरूरी है, और ग्रुप सी एंड डी के लिए ग्रेटर देन ₹2,000 होगा, ओके। कोई ग्रुप सी की ग्रुप डी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट फंक्शन है और वहां पर गिफ्ट मिल रहा है और उसका वैल्यू मोर देन 2,000, वहां पर परमिशन लेना जरूरी है, ओके, परमिशन प्रायर परमिशन नेसेसरी है, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, फैमिलियरिटी अराइजिंग और प्राइवेट हॉस्पिटलिटी, आप जितना प्राइवेट हॉस्पिटलिटी है आप अवॉइड कीजिए, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटलिटी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं है, वो गिफ्ट में चला जाता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटलिटी को आप अवॉइड कीजिए। और जैसे फ्री इन्वाइटेशंस फॉर फ्री इनॉग्रल फ्लाइट्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, ये भी गिफ्ट में आ जाएगा। कोई फ्री इनॉग्रल फ्लाइट्स का सुविधा मिल रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट को, उसका फैमिली मेंबर्स को, यदि आप उसको इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हो, वो गिफ्ट में चला जाता है, ठीक है, और इसको गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वहां पर डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो फ्री इनॉग्रल फ्लाइट्स फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स, वो गिफ्ट में इंक्लूड होगा। और एक्सेप्टेंस ऑफ पैसेज एंड हॉस्पिटलिटी बाय ऑफिसर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रैक्टिंग फार्म्स नॉट परमिसेबल। कोई आपका जो ऑफिशियल डीलिंग है, फॉरेन फार्म के साथ ऑफिशियल डीलिंग है और उनसे आप हॉस्पिटलिटी ले रहे हो, तो वो तो गिफ्ट में जाएगा, क्योंकि वो फॉरेन फार्म के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है और उनसे आप हॉस्पिटलिटी ले रहे हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे बोर्डिंग लॉजिंग हो, चाहे फूडिंग हो, ठीक है, आप वो हॉस्पिटलिटी आप ले रहे हो और उन्हीं का बेसिकली फार्म के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, वो तो गिफ्ट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ मेंबरशिप ऑफ द फॉरेन बुक क्लब entitle the government servant to receive books etc by way of gifts, the question of acceptance of such gifts would be governed by rule 13। यदि कोई, देखिए आपको कोई फॉरेन बुक क्लब, यहां पर देख लीजिए, कोई फॉरेन बुक क्लब का मेंबरशिप लेना है तो प्रायर परमिशन चाहिए,
ओके, यहाँ पर द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड ऑब्टेन प्रायर परमिशन ओके फॉर एक्सेप्टिंग द मेंबरशिप ऑफ बुक क्लब। फर्स्ट वन, आप कोई फॉरेन बुक क्लब का मेंबरशिप लेना चाहते हो तो प्रायर परमिशन जरूरी है। ठीक है, यदि आपको गवर्नमेंट परमिशन दे दिया और वहां पर आपको कुछ बुक्स आप रिसीव कर रहे हो आज ए मेंबर, क्योंकि ऑलरेडी यू गॉट प्रायर परमिशन फॉर द मेंबरशिप ओके ऑफ फॉरेन बुक क्लब, और वो फॉरेन बुक क्लब से आपको आज ए मेंबर आप कुछ बुक्स रिसीव कर रहे हो, तो वो भी जो रूल 13 जो है सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 रूल 13 के हिसाब से चला जाएगा, जनरल गिफ्ट। तो बुक्स का वैल्यू वही है, जैसे अप टू ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर अप टू जो बुक्स आप रिसीव कर रहे हो अप टू ₹5,000 कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ग्रेटर देन 5,000 है तो प्रायर परमिशन चाहिए। ग्रुप सी एंड डी के लिए वैसा ही है। ठीक है, तो वहां पर सीसीएस का रूल 13 ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल्स लागू होता है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे कोई फॉरेन बुक क्लब का मेंबरशिप नहीं ले सकते हो, फास्ट प्रायर परमिशन चाहिए। यदि परमिशन आप ले लिए और आपको कुछ बुक्स गिफ्ट मिलता है गिफ्ट के आकार में, आप उसका वैल्यू देखिए। यदि उसका वैल्यू ग्रेटर देन 5,000 है आज ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर, तो आपका गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, नो ऑफिशियल ऑफ द डिपार्टमेंट बी परमिटेड टू एक्सेप्ट एनी प्राइज और अवार्ड फ्रॉम ए रोटरी क्लब और ए प्राइवेट फार्म। देखिए, आपको कोई चाहे रोटरी क्लब है कि प्राइवेट फार्म है, आपका कोई मेरिटोरियस सर्विस है, आपको वो प्राइज दे रहे हैं, तो आप उसको डिक्लाइन कीजिए, पोलाइटली डिक्लाइन कीजिए, आप नहीं ले सकते। यदि आप का सर्विस मेरिटोरियस है तो गवर्नमेंट आपको दे सकता है, आप कहीं क्यों आपको रोटरी क्लब और प्राइवेट फार्म देगा और आप उसको रिसीव करोगे? तो आपको पोलाइटली उसको डिक्लाइन करना है। याद रखिए, यदि कुछ प्राइज की अवार्ड आपको रोटरी क्लब प्राइवेट फार्म से मिलता है, सिंपली वेरी पोलाइटली आप उसको डिक्लाइन कीजिए। ठीक है, और यदि आप गवर्नमेंट को परमिशन मांगते हो कि मुझे प्रायर परमिशन चाहिए, कितना दिन, यदि आप देखिए आप परमिशन मांगा 30 डेज में, सपोज आपको 30 डेज क्रॉस हो गया, आपको कुछ परमिशन नहीं मिला, तो आप मान लीजिए कि ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट परमिशन दे दिया, तो इट मींस 30 डेज के अंदर आपको गवर्नमेंट परमिशन देगा। तो टाइम लिमिट देखिए, टाइम लिमिट बियॉन्ड व्हिच परमिशन में बी अज्यूम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द एब्सेंस ऑफ एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम हिम 30 डेज। तो आप कोई परमिशन मांगा और 30 डेज लिमिट है, 30 डेज क्रॉस हो गया, तो ये मान लेंगे कि ऑटोमेटिकली आपको गवर्नमेंट परमिशन दे दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, अभी हम डाउरी के ऊपर चलेंगे। रूल 13 ए डाउरी। तो इसमें देखिए जो उसका 2 सबसेक्शन है, जो रूल 13A सबसेक्शन आई को हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट सबसेक्शन को, एब्सोल्यूट बैन ऑन डाउरी फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट गिव, कैन नॉट टेक और कैन नॉट हेल्प। हेल्प मीन्स वो अबेट आ जाता है, अबेटमेंट आ जाता है इन गिविंग और टेकिंग डाउरी। तो देखिए, आज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आप किसको डाउरी नहीं देंगे, किससे डाउरी नहीं लेंगे और किसको हेल्प नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली आप कभी कभी क्या है, आप हेल्प किया डाउरी के लिए, ओके इनडायरेक्टली, तो वो भी आ जाता है डाउरी में। तो उसमें ये क्लियरली दे दिया जो सबसेक्शन आई में कि गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट गिव, शुड नॉट टेक और शुड नॉट हेल्प। हेल्प मीन शुड नॉट अबेट अदर्स ओके फॉर कलेक्टिंग डाउरी। ठीक है, ये फर्स्ट सबसेक्शन है। यहां पर और एक मतलब बात है, नॉट डिमांडिंग डाउरी। सेकेंड देखिए, जो सबसेक्शन है 13A, उसका जो सेकेंड सबसेक्शन है, not demanding dowry directly or indirectly. A government servant must not demand any dowry from the parents or the guardians of bride, bridegroom in connection with marriage. Directly, indirect, directly हो कि indirectly हो, आप कभी भी डाउरी डिमांड नहीं कर सकते। ब्राइड जो ब्राइड का जो फ्रॉम द पेरेंट्स, देखिए आपका ब्राइड का पेरेंट्स से आप नहीं ले सकते कि ग्रूम का पेरेंट्स से नहीं ले सकते। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ तो जनरल है, मगर उसके बाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी आप डाउरी नहीं ले सकते। उसको और थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। देखिए, डायरेक्ट डिमांड, ओपन डिमांड, जब आप ओपन डिमांड कर रहे हो, मगर इनडायरेक्ट डिमांड क्या है, आप हिंट दे रहे हो
इनडायरेक्ट डिमांड्स में हिंटिंग, प्रेशराइजिंग, एक्सपेक्टिंग, ये सब इनडायरेक्ट आ जाता है। आप हिंट दे रहे हो कि मुझे डाउरी दो, कि प्रेशर कर रहे हो, कि एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे वैल्यूएबल गिफ्ट्स मिलेगा, ये सब आ जाएगा, ये इनडायरेक्ट डिमांड्स में आ जाएगा। डायरेक्ट डिमांड तो आप डायरेक्ट डिमांड कर रहे हो मुझे इतना डाउरी दो, तो ये सब आ जाएगा डायरेक्ट डिमांड्स और इनडायरेक्ट डिमांड्स, यदि वो भी डाउरी में आ जाएगा। ठीक है। और मीनिंग ऑफ डाउरी इसके ऊपर एक आता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये भी ये ईयर के ऊपर आता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, उसका एक सेक्शन 28 है, वो एक्चुअली बेसिकली डाउरी में क्या क्या आएगा। दिस मीन्स एनीथिंग गिवन और एग्रीड टू बी गिवन ड्यूरिंग मैरिज, चाहे आप दे दिया कि आप एग्रीड कर रहे हो कि उस आप दोगे, चाहे कैश हो, ज्वेल्स और गोल्ड प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल आइटम्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वेदर डिमांडेड बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मैरिज। ठीक है, ये डाउरी का जो डेफिनेशन है, मीनिंग ऑफ डाउरी है। ठीक है, जो डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 उसका एक सेक्शन 28 है, वो क्लियरली मेंशन किया है कि आप सपोज दिस मीन्स एनीथिंग गिवन, आप दे दिया कि सपोज आप एग्रीड हो गए कि मैं उसको सपोज बिफोर मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज कि आफ्टर मैरिज, आप दे दिया कि आप देने के लिए एग्रीड हो, तो ये सब थिंग, दीज थिंग्स, कैश, ज्वेल्स और गोल्ड प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल आइटम्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, एनी अदर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ओके, वेदर आप डिमांड कर रहे हो बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द मैरिज। ठीक है, अप्लाइज टू द एंटायर फैमिलीज इन्वॉल्वमेंट। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ये बोल रहा है द रूल अप्लाइज इवन इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट यूजेस ए रिलेटिव और फ्रेंड टू मेक द डिमांड। आप खुद डायरेक्टली आप डिमांड नहीं कर रहे हो, आपका रिलेटिव और आपका फ्रेंड को आप अबेट कर रहे हो कि आप प्रेशर, उनका हेल्प लेके, रिलेटिव और फ्रेंड का हेल्प लेके आप डाउरी डिमांड कर रहे हो, वो भी डाउरी में आ जाएगा। और ए गवर्नमेंट सर्वेंट साइलेंटली सपोर्ट्स और एग्रीज टू द डिमांड, साइलेंटली आप सपोर्ट कर रहे हो डाउरी के लिए, तो वो भी आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू रिलेटिव और थ्रू फ्रेंड ऑल्सो द गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट मेक डिमांड, और गवर्नमेंट सर्वेंट ऑल्सो साइलेंटली सपोर्ट्स, यदि साइलेंट मैनर आप सपोर्ट कर रहे हो और एग्रीज हो रहे हो डिमांड को, तो वो भी डाउरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस को आप याद रखिए, क्वेश्चन इसी रिलेटेड में आता है। तो एक है आप ऐसे डायरेक्ट डिमांड नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट भी हिंट्स, प्रेशराइजिंग, ये सब आ जाता है, और आपका फ्रेंड्स रिलेटिव का हेल्प लेके भी आप डिमांड नहीं कर सकते, और आप साइलेंट नहीं हो सकते। वहां पर डाउरी डिमांड हो रहा है और आप साइलेंट हो, आप सब देख रहे हो, आप साइलेंट हो, आप उसको डिनाई नहीं कर रहे हो, वो भी डाउरी में आ जाएगा। और इसमें नोट में दो चीज है, एक स्त्री धनम है, जो स्त्री धनम में क्या है, अमंग क्रिश्चियंस होता है, वो डाउरी में इंक्लूड होता है। ठीक है, जो स्त्री धनम अमंग क्रिश्चियंस फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ डाउरी, डाउरी में इंक्लूड होता है। और एक चीज है, बेसिकली मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शहरियत अप्लाइज कर रहा है, जो डायर है और महार है, महार क्या, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस केस में ग्रूम एक्चुअली ब्राइड को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, तो वो डाउरी में इंक्लूड नहीं होगा, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेंशन है। तो डाउरी डज नॉट इंक्लूड यहां पर दिया है। यहां पर ये दो बहुत बारी क्वेश्चन आया है, स्त्री धनम इंक्लूड होगा जो अमंग क्रिश्चियंस, वो डाउरी में इंक्लूड होगा, मगर जो महार है और जो डायर है, जो बेसिकली मैं बताया जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलता है ग्रूम से ब्राइड को, तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में वो डाउरी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, चलो इसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी देखेंगे। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, जैसे कुछ आपका लैंड रिकॉर्ड है, चाहे आपका कोई बॉन्ड पेपर है, ठीक है, चाहे कोई एनी अदर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो सब वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। तो इसको इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 सेक्शन 30 में क्लियरली मेंशन किया गया है। जैसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी मींस एनी डॉक्यूमेंट विच क्रिएट, सपोज एनी डॉक्यूमेंट अभी क्रिएट हुआ है ऐसा कुछ, सपोज एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप क्या किया, सपोज एक कंपनी में आप मनी इन्वेस्ट किया और उसका सिक्योरिटी आपके पास है, तो वो सिक्योरिटी, वो ऐसे तो आप मनी इन्वेस्ट नहीं करोगे। सपोज कोई कंपनी में आप 5 लाख इन्वेस्ट किया, तो उसका सिक्योरिटी आपके पास है, सिक्योरिटी पेपर कि एक्सटेंड्स, वो रेन्यू हो रहा है। और ट्रांसफर्स क्या है, जैसे लैंड ट्रांसफर होता है, तो आप लैंड बेच दिया, तो आपका नाम से जिसको बेचा बायर के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा,
तो पट्टा जो आएगा ना, जो लैंड रिकॉर्ड आएगा, वो उसमें नाम ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपका लैंड को बेच दिया। और कुछ रेस्ट्रिक्ट है, सपोज ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसका एक लिमिट होता है कहां पर वो आपको यूज कर सकते हो। एक्सटिंग्विशेस और रिलीजियस एंड लीगल राइट, कभी कभी क्या है, एक पीरियड होता है कि 5 ईयर्स के लिए, सपोज जैसे आप 5 ईयर्स के लिए कंपनी का सिक्योरिटी के ऊपर इन्वेस्ट किया, तो 5 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली जो आपके पास जो सिक्योरिटी पेपर है उसका लीगल राइट खत्म हो जाता है। तो ये सब चीज एक्चुअली आ जाता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, चाहे बॉन्ड पेपर हो, चाहे लैंड रिकॉर्ड हो, ठीक है, चाहे कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिकॉर्ड हो, वो सब वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आ जाता है। मगर इसमें क्वेश्चन आता है, इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 सेक्शन 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अभी हम चलेंगे, मैं बोला था 30 क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, और मैं बोला था 3 रूल्स को मैं डिस्कस करूंगा, ब्रीफली एक्सप्लेन किया। कोई भी उसके ऊपर आपको सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलता है, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं पॉइंट वाइज उसको क्लैरिफाई किया। अभी एमसीक्यूज को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अंडर रूल 12, ये सब्सक्रिप्शन रिलेटेड है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन आस्क फॉर और एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशंस ओनली व्हेन इट इज फॉर ए सोशल कॉज, इट इज फॉर एन इमरजेंसी सिचुएशन, प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज ऑब्टेन्ड, द हेड ऑफ ऑफिस वर्बली परमिट्स। इसमें देखिए ऑप्शन सी, यदि आप कुछ कंट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन आस्क फॉर और एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशंस, तब इस केस में प्रायर सैंक्शन चाहिए, प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट चाहिए। बिना प्रायर सैंक्शन से आप ये नहीं बोलोगे कि चैरिटी के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं, कि ये सोशल कॉज के लिए फंड रेज कर रहा हूं, ऐसे नहीं हो सकता। आपको प्रायर सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट का। यदि गवर्नमेंट आप एक सपोज पर्पोज दिया कि मैं चैरिटी के लिए कर रहा हूं, कि मैं फंड रेज करना चाहता हूं, जैसे कोई सोशल कॉज के लिए, तो उसमें उसको गवर्नमेंट एनालाइज करेगा। यदि गवर्नमेंट परमिशन देता है, आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिशन देते हैं, तब आप फंड रेज कर सकते हो। तो यहां पर जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वायोलेट रूल 12 बाई सब्सक्रिप्शन रिलेटेड है। रूल 12 को वायोलेट कर रहा है। 4 स्टेटमेंट्स गिवन, एक्सेप्टिंग कंट्रीब्यूशंस विदाउट परमिशन, ये वायोलेट कर रहा है। वायोलेट जो करेगा मैं टिक लगाता हूं। एक्सेप्टिंग कंट्रीब्यूशंस विदाउट परमिशन, ये वायोलेट कर रहा है। हेल्पिंग अदर्स इन कलेक्टिंग गुड्स फॉर चैरिटी विदाउट परमिशन, ये भी वायोलेट कर रहा है। आस्किंग फॉर फंड्स विथ प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, विथ प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, ये वायोलेट नहीं कर रहा है। ओके, ज्वाइनिंग ए फंड रेजिंग इवेंट विदाउट परमिशन, ये भी वायोलेट कर रहा है। तो 1, 2, 4 वायोलेट कर रहा है रूल 12 को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओनली जो स्टेटमेंट 2 है वो वायोलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें सॉरी, जो थर्ड स्टेटमेंट है आस्किंग फॉर फंड्स विद प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, तो ये वायोलेट नहीं कर रहा है। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, a government servant accepts donated books for a school event without permission. This is allowed because it is in kind, allowed because purpose is educational, not allowed under rule 12, allowed if books are not very costly. A government servant accepts donated books for a school event without permission. No, ये नहीं कर सकते, रूल 12 को वायोलेट करेगा। ऑप्शन सी, ये नहीं कि एजुकेशनल पर्पज के लिए ये डोनेटेड बुक्स को मैं रिसीव कर रहा हूं, ऐसे आप नहीं कर सकते। वहां पर आपको प्रायर परमिशन चाहिए आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिशन देते हैं तब आप डोनेटेड बुक्स को रिसीव कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हियर 3 स्टेटमेंट्स गिवन, करेक्ट स्टेटमेंट को आपको डिक्टेट करना है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ ए सर्विस यूनियन में फ्रीली कलेक्ट सब्सक्रिप्शंस अमंग देमसेल्व्स फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द यूनियन विदाउट प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन, ये करेक्ट है, क्योंकि सर्विस यूनियन उसका मेंबर से वो सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करेगा, क्योंकि मेन पर्पज क्या है, वेलफेयर ऑफ द सर्विस यूनियन। जो सर्विस यूनियन का वेलफेयर के लिए मेंबर्स से वो कुछ कंट्रीब्यूशन, आस्किंग सम कंट्रीब्यूशन, तो ये विदाउट कुछ गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, कि प्रायर परमिशन नहीं चाहिए।
गवर्नमेंट सर्वेंट्स नीड्स प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन फ्लैग डे कलेक्शन। ये गलत है। फ्लैग डे कलेक्शन में वॉल्यूंटरीली गवर्नमेंट ऑफिसर्स दे रेज फंड्स, नॉट इन ऑफिशियल कैपेसिटी। मगर इसमें देयर इज नो नीड ऑफ प्रीवियस सैंक्शन, इसमें प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए, इसको भी डिस्कस कर चुका हूं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन कलेक्ट फंड्स फॉर द जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड विदाउट प्रायर सैंक्शन। ये भी नहीं है, क्योंकि आपको क्लियरली मेंशन है जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के लिए गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है फंड रेज करने के लिए। आप इंडिविजुअली आप पर्सनल कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो करो, मगर उसके लिए आप नहीं कर सकते। तो उसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली वन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। 3 क्वेश्चंस गिवन। Participation by government servants in fundraising activities for the National Foundation for Communal Harmony does not require prior sanction। तो ये करेक्ट है। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी के लिए वॉल्यूंटरीली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दे कैन रेज फंड बट नॉट इन ऑफिशियल कैपेसिटी। इसमें तो कोई देयर इज नो नीड ऑफ प्रायर परमिशन, प्रायर सैंक्शन की प्रायर परमिशन जरूरत नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट कंट्रीब्यूशंस फॉर द जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, ये करेक्ट है, आर नॉट अलाउड। मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑथराइज हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद रेजिंग द नेशनल डिफेंस फंड, ये करेक्ट है, क्योंकि नेशनल डिफेंस फंड के लिए फंड रेज करना चाहते हो तो फर्स्ट वन कंसर्न मिनिस्ट्री का प्रायर परमिशन चाहिए, और मिनिस्ट्री किसको परमिशन देता है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स का हेल्प लेके फंड रेज कर सकता है। तो ये जो तीनों है करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट, तो तीनों करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर देखिए एक असर्शन है, रीजन है, और आपको देखना है ऑप्शन जैसे बोथ ए, असर्शन का सिंबल ए है और रीजन का सिंबल आर है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आजकल इस तरह का क्वेश्चन भी आ रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शंस देखिए, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट वन। तो आप देखिए इसमें असर्शन में दिया है मेंबर्स ऑफ ए सर्विस यूनियन में कैन फ्रीली कलेक्ट सब्सक्रिप्शंस अमंग देमसेल्व्स फॉर देयर वेलफेयर एक्टिविटीज, ये करेक्ट है। रीजन क्या दिया है? कलेक्शन ऑफ फंड्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स is strictly prohibited in all circumstances। कलेक्शन ऑफ फंड्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स इज स्ट्रिक्टली ऑल सर्कल, ये गलत है, क्योंकि ऑल कुछ सर्कमस्टांस है आप फंड कलेक्ट कर सकते हो, जैसे फ्लैग डे है, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, इसमें आप कर सकते हो वॉल्यूंटरीली, नॉट एज ऑफिशियल कैपेसिटी, वॉल्यूंटरीली कर सकते हो, पर ऑल सर्कमस्टांसेस में बैन है, ये नहीं है। तो इसमें क्या है, बहुत इजी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। असर्शन इज करेक्ट वन बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अनदर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन है कि पार्टिसिपेशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स इज इन फंड रेजिंग फॉर द नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी इज परमिसिबल विदाउट प्रायर सैंक्शन, ये तो करेक्ट है, क्योंकि कम्युनल हार्मोनी, फ्लैग डे, इसमें कोई प्रायर सैंक्शन का जरूरत नहीं है। रीजन, द रूल्स स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट NFCH फंड रेजिंग फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीवियस सैंक्शन, ये देखिए ये भी करेक्ट है, मगर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि NFCH के लिए, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी के लिए जो फंड रेजिंग होगा उसको एग्जेम्पशन है कि आप प्रीवियस सैंक्शन का जरूरत नहीं है, आप वॉल्यूंटरीली गवर्नमेंट ऑफिसर्स दे कैन रेज फंड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू वन एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि ऐसा नहीं है कि प्रोहिबिशन है, मगर NFCH के लिए, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी के लिए एग्जेम्पशन है, कोई देयर इज नो नीड ऑफ प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, क्लियरली मेंशन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ए ग्रुप ए ऑफिसर receives a wedding gift worth 40,000 from a close friend who has no official dealings, what must to do? मैं बताया था कि ऐसा जो सोशल एंड रिलीजियस सेरेमनी, जैसे वेडिंग है, एनिवर्सरी है, फ्यूनरल है, एनी अदर रिलीजियस फंक्शन में
रिलेटिव्स क्लोज फ्रेंड से गिफ्ट रिसीव होगा, मगर लिमिट में। यदि ग्रुप ए ऑफिसर पूछा है ना, तो ग्रेटर देन ₹25,000 है, रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा। तो यहां पर 40,000 रिसीव किया, तो एक्सेप्ट बट रिपोर्ट टू गवर्नमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रुप बी ऑफिसर जनरल गिफ्ट, ग्रुप बी ऑफिसर के लिए जनरल गिफ्ट ग्रेटर देन ₹5,000 है, तब गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, प्रायर परमिशन चाहिए। तो एक ग्रुप बी ऑफिसर वांट्स टू एक्सेप्ट ए जनरल गिफ्ट वर्थ ₹7,000 ग्रेटर देन 5,000। ये जनरल गिफ्ट मीन्स क्या है? नॉट ए सोशल रिलीजियस ओकेजन। मैं एक टेबल में बताया था जो 13 सबसेक्शन 3 में, व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर तो प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन चाहिए, आप इसको ऐसे रिसीव नहीं कर सकते जनरल गिफ्ट, प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। गिफ्ट्स फ्रॉम ए फॉरेन फार्म हैविंग एन ऑनगोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। आप देखिए 13 सबसेक्शन 5 देखिए क्लियरली मेंशन है कि यदि जो फॉरेन फार्म का कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उससे आप गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते। कि यदि उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, उससे आप नहीं कर सकते। कि सपोज जो फॉरेन फार्म है उसके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, कि कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वहां पर आप रिसीव कर सकते हो, मगर जो जनरल गिफ्ट का लिमिट है उसको फॉलो करोगे। तो यहां पर परमिटेड विथ सैंक्शन, परमिटेड विथ मॉनेटरी लिमिट, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आप नहीं ले सकते। दो पॉइंट्स आप देखिए 13 सबसेक्शन 5 में क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूं। यदि जो फॉरेन फार्म का कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो आप उससे गिफ्ट नहीं ले सकते। कि उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, आप उससे गिफ्ट नहीं ले सकते। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स फैमिली accepts an invitation for a free inaugural flight, this is considered, ये नहीं होगा। चाहे ट्रैवल फैसिलिटी नॉट ए गिफ्ट, गिफ्ट अंडर रूल 13 सोशल कॉर्टेसी नो रूल अप्लाइज, गिफ्ट होगा। क्यों? गवर्नमेंट सर्वेंट फैमिली फ्री इनॉग्रल फ्लाइट, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो कि गवर्नमेंट सर्वेंट का फैमिली हो, यदि फ्री इनॉग्रल फ्लाइट का इन्वाइटेशन एक्सेप्ट करता है तो वो गिफ्ट में इंक्लूड होता है। ओके, वो गिफ्ट में जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे। ये ग्रुप सी एम्प्लॉई, ग्रुप सी जनरल गिफ्ट में एक्सेप्ट ए जनरल गिफ्ट वर्थ अप टू ₹2,000, अप टू ₹2,000, 2,000 से ज्यादा होगा तो उस केस में वो गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन चाहिए। और ग्रुप ए बी के लिए ये 5,000 है, जनरल गिफ्ट ना अंडरलाइन में किया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ए रिटायरिंग ऑफिसर is offered a gift by colleagues worth above tripling value, worth above tripling value, worth above tripling value means greater than suppose ₹5,000 है, ये ग्रुप ए एंड बी के लिए। ये मोर देन ट्रिपलिंग वैल्यू हो गया कि ग्रेटर देन ₹2,000 है, ये ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉइज के लिए हो गया। तो इस केस में परमिशन चाहिए, एक्सेप्ट करो बट ऑब्टेन प्रायर गवर्नमेंट परमिशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको मोर देन ट्रिपलिंग वैल्यू मीन्स आपको गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे आप ट्रांसफर हो। इस केस में जो गिफ्ट मिलता है, आप रूल 13 सबसेक्शन 3 को फॉलो करना है, जनरल गिफ्ट का जो लिमिट है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मेंबरशिप ऑफ ए फॉरेन बुक क्लब कैन बी एक्सेप्टेड ओनली। अच्छा, मेंबरशिप आप कैसे लेंगे? एक फॉरेन बुक क्लब का मेंबरशिप लेना चाहते हो तो प्रायर परमिशन गवर्नमेंट का चाहिए, विथ प्रायर गवर्नमेंट परमिशन। ऑप्शन बी, मैं इसको भी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 15, ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे अज्यूम्ड परमिशन फॉर एक्सेप्टिंग ए गिफ्ट if no reply is received from the competent authority within 30 days। तो परमिशन मान आप मैं बताया था, यदि सपोज आपको गिफ्ट मिल रहा है रिलीजियस, सपोज इसमें कोई रिलीजियस फंक्शन है, रिलीजियस फंक्शन में आपको गिफ्ट मिल रहा है 50,000 गिफ्ट मिल रहा है, तो इसमें तो आपको परमिशन चाहिए।
क्योंकि लिमिट सॉरी आप रिपोर्ट करोगे इसमें 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 मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज जनरल गिफ्ट सपोज आप एक ग्रुप पे ऑफिसर हो, आपको ग्रेटर देन 8,000 मोर देन 5,000 ये मिल रहा है, ग्रेटर देन 5,000 का गिफ्ट मिल रहा है, तो उस केस में आपको परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन। तो यदि 30 डेज में आपको कुछ परमिशन नहीं मिलता है तो ये ऑटोमेटिकली मान लेंगे गवर्नमेंट परमिशन दे दिया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ए प्राइज फ्रॉम ए रोटरी क्लब ऑफर्ड फॉर एक्सीलेंट सर्विस मस्ट बी। देखिए कोई रोटरी क्लब है, कोई प्राइवेट फार्म है, आपको एक्सीलेंट सर्विस के लिए प्राइज वो दे रहा है, उसको पोलाइटली डिक्लाइन करना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डिक्लाइन पोलाइटली। आप वेरी पोलाइट मैनर, वेरी हम्बल मैनर उसको मना कर देना है, डिक्लाइन करना है, उससे नहीं लेना है। यदि आप इतना एक्सीलेंट सर्विस है कि मेरिटोरियस सर्विस है, आपको आपका जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, आपका डिपार्टमेंट है, आपको वो प्राइज देगा, मगर आप कैसे रोटरी क्लब और प्राइवेट फार्म से रिसीव कर सकते हो? तो पोलाइटली उसको डिनाई कर दो। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, a government servant receives a gift from a foreign dignitary while on delegation, he can retain it only under। मैं एक रूल बताया था, ये है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ गिफ्ट्स रूल्स 2012। आप रूल 13 सबसेक्शन 4 देखिए, क्लियरली मेंशन है। ठीक है, ये अमेंडमेंट होता रहता है, मगर अभी ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ गिफ्ट्स रूल्स 2012 को फॉलो कीजिए। जो भी प्रोविजन है उसको आपको यू मस्ट बाइंड टू फॉलो दैट प्रोविजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए फिर आ गया, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स है, करेक्ट स्टेटमेंट को आप डिटेक्ट करेंगे, करेक्ट को मैं अंडरलाइन कर दिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जनरल रूल ऑन गिफ्ट्स फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट फॉर हिमसेल्फ। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट अलाउ हिज फैमिली, ये करेक्ट है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट अलाउ हिज फैमिली मेंबर्स टू एक्सेप्ट ए गिफ्ट ऑन हिज बिहाफ, ये भी करेक्ट है। Gifts from near relatives are completely prohibited under all circumstances। नहीं, इसमें ये गलत होगा, ऑल सर्कमस्टांसेस नहीं, गिफ्ट्स फ्रॉम नियर रिलेटिव्स, क्योंकि आप रूल 13(2) देखिए, आपको गिफ्ट मिल रहा है, जैसे कोई सोशल एंड रिलीजियस फंक्शन है, आपको आपका रिलेटिव्स की, आपका क्लोज फ्रेंड्स गिफ्ट देते हैं एक लिमिट के अंदर, है कि नहीं? तो लिमिट से बाहर जाएगा तो आप रिपोर्ट करोगे। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए रूल 13 सबसेक्शन 1 में मैं बोला था, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट, कि ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एनी रिलेटिव और एनी अदर पर्सन दे कैन नॉट रिसीव गिफ्ट। मगर ये नहीं है कि नियर रिलेटिव्स आप ले सकते हो, मगर एक सोशल एंड रिलीजियस फंक्शन में बताया था 13 सबसेक्शन 2 में, एक लिमिट के अंदर, इससे ज्यादा होगा तो आप रिपोर्ट करोगे। यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। 3 स्टेटमेंट्स गिवन। फ्री होटल स्टे इज कंसिडर्ड ए गिफ्ट, फ्री ट्रांसपोर्ट और फ्री सर्विस इज कंसिडर्ड ए गिफ्ट, ओकेजनल सिंपल मील्स एंड नॉर्मल सोशल हॉस्पिटलिटी अमंग फ्रेंड्स आर कंसिडर्ड गिफ्ट्स एंड देयर। देखिए मैं बोला था, क्या गिफ्ट में काउंट होगा, क्या गिफ्ट में काउंट नहीं होगा? देखिए फ्री होटल स्टे ये गिफ्ट में काउंट होगा, फ्री ट्रांसपोर्ट और फ्री सर्विस गिफ्ट में काउंट होगा, मगर ऑकेजनल सिंपल मील और कोई नॉर्मल सोशल हॉस्पिटलिटी अमंग द फ्रेंड्स ओके आर कंसिडर्ड गिफ्ट्स एंड दे आर फॉर प्रोहिबिटेड, ये नहीं है। ऑकेजनल सिंपल मील्स की नॉर्मल सोशल हॉस्पिटलिटी अमंग द फ्रेंड्स ये गिफ्ट में काउंट नहीं होगा, मगर फर्स्ट 2 जो है गिफ्ट में काउंट होगा, इसको मैं भी डिस्कस कर चुका हूं। तो उसमें आपको इनकरेक्ट जो है ओनली 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मैं क्रॉस लगा दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर भी देखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। ठीक है, गिफ्ट्स ऑन सोशल एंड रिलीजियस ओकेजन्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है रूल 13 सबसेक्शन 2 के ऊपर है। गिफ्ट्स ऑन ओकेजन सच एज वेडिंग्स, फ्यूनरल्स, एनिवर्सरीज एंड रिलीजियस फंक्शंस मे बी एक्सेप्टेड, करेक्ट है। द मॉनेटरी लिमिट्स फॉर एक्सेप्टेंस आर 25,000 फॉर ग्रुप ए, 15,000 फॉर ग्रुप बी एंड 7,500 फॉर ग्रुप सी, ये करेक्ट है। These limits apply even when the gift is from a near relative. These limits apply, yes, it is correct one.
ये जो रिलीजियस सोशल रिलीजियस ओकेजन्स में आप जो गिफ्ट ले रहे हो, किससे ले रहे हो? आपका नियर रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स है कि नहीं? तो यही तो लिमिट है, नियर रिलेटिव्स क्लोज फ्रेंड्स। आप रूल 13 सबसेक्शन 2 देखिए, दीज लिमिट्स अप्लाई इवन व्हेन द गिफ्ट इज फ्रॉम ए नियर रिलेटिव। यस, तो तीनों करेक्ट है। तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 21, यहां पर भी हम करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। 3 स्टेटमेंट्स गिवन। जनरल गिफ्ट लिमिटेड है। फॉर जनरल गिफ्ट्स not on social religious occasion the limit is 5000 for group A and B and rupees 2000 for group C and D। ये करेक्ट है। Permission is sought but the competent authority does not respond within 30 days, permission may be assumed to have been granted। ये ठीक है। हाँ, परमिशन मांगा, प्रायर परमिशन, गवर्नमेंट 30 डेज के अंदर नहीं दिया, 30 डेज क्रॉस हो गया तो ये मान लो कि गवर्नमेंट परमिशन दे दिया, वो डीम्ड परमिशन जिसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक परमिशन। नो परमिशन इज नीडेड फॉर एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर रिगार्डलेस ऑफ इट्स वैल्यू। नहीं है, ट्रांसफर केस में भी वही है। आप जो रूल 13 सबसेक्शन 3 है 5000 2000 वाला, तो ट्रिपलिंग वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर देन ट्रिपलिंग वैल्यू है तो गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन चाहिए, मगर यहाँ पर नो परमिशन इज नीडेड दिया है। तो करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट मीन्स 1 और 2 होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। A government servant may return gifts received from foreign dignitaries as per foreign contribution rules 2021। 2021 गलत है, 2012 ये गलत है, ईयर 2012 होना चाहिए। A government servant may accept gifts from a foreign firm even if he has official dealings with that firm provided it is below। no, ये नहीं होगा क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन है यदि आप कोई फॉरेन फार्म के साथ ऑफिशियल डीलिंग है उससे कोई गिफ्ट आप रिसीव नहीं कर सकते। तो यहां पर दिया है कि मे एक्सेप्ट गिफ्ट्स, दिया है, गलत है। एक्सेप्टेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी और पैसेज फ्रॉम ए फॉरेन कंट्रैक्टिंग फार्म इज नॉट परमिसेबल, ये तो करेक्ट है। ओके, कोई फॉरेन कंट्रैक्टिंग फार्म है चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और उससे आप हॉस्पिटैलिटी और कुछ फैसिलिटीज ले रहे हो तो ये परमिसेबल नहीं है। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट मीन्स 1 और 2, तो यहां पर भी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट पूछा है, मैं क्रॉस लगा चुका हूं फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स। 23, यहां पर भी हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। फ्री इनॉग्रल फ्लाइट इनविटेशंस टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स और देयर फैमिलीज काउंट एज गिफ्ट्स, ये करेक्ट है। एक्सेप्टेंस ऑफ प्राइजेस और अवार्ड्स फ्रॉम रोटरी क्लब्स और प्राइवेट फार्म्स इज प्रोहिबिटेड, करेक्ट है। एक्सेप्टिंग मेंबरशिप इन ए फॉरेन बुक क्लब रिक्वायर्स प्रायर परमिशन बट एक्सेप्टेंस ऑफ फ्री बुक्स रिसीव्ड थ्रू दैट मेंबरशिप इज नॉट ट्रीटेड एज गिफ्ट, ये गलत है। क्योंकि ठीक है, मेंबरशिप तो प्रायर परमिशन में आप ले लिया, मगर जब बुक्स आप फ्री बुक्स रिसीव कर रहे हो तो वो लिमिट को ग्रुप ए एंड बी के लिए 5000 वैल्यू होना चाहिए और 2000। जो जनरल गिफ्ट जो 13 सबसेक्शन 3 जनरल गिफ्ट, ये ग्रुप ए एंड बी इससे क्रॉस होगा तो परमिशन चाहिए, प्रायर परमिशन चाहिए। ग्रुप सी एंड डी के लिए ग्रेटर देन 2000 होगा तो इसमें बोल दिया है एक्सेप्टेंस ऑफ फ्री बुक्स रिसीव थ्रू दैट मेंबरशिप इज नॉट ट्रीटेड एज गिफ्ट, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो यहां पर इनकरेक्ट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, क्योंकि ओनली स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, यहां पर देखिए असर्शन एंड रीजन दे दिया, इसको हम देखेंगे। असर्शन दिया है गवर्नमेंट सर्वेंट इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम गिविंग, टेकिंग और अबेटिंग द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, ये तो करेक्ट है। और रीजन दिया है डाउरी इज कंसिडर्ड ए क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये ठीक है। माने यहां पर क्या होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा क्योंकि ए आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहां पर भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट वायोलेट्स कंडक्ट रूल्स even if he indirectly hints at expecting expensive gifts during marriage, absolutely करेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्टली हिंट्स दे रहा है वो गिफ्ट के लिए, तो ये तो डाउरी में जाएगा। रीजन, इनडायरेक्ट डिमांड्स फॉर डाउरी आर ट्रीटेड एज डाउरी डिमांड्स अंडर द रूल्स, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो दिया है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू
और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है. A government servant violates conduct rules even if he indirectly hints at expecting expensive gifts during marriage. क्योंकि बड़ा वायोलेट किया ना जो रूल, जो डाउरी का रूल है, रूल 13A, इसमें क्लियरली बीट आई में देखिए इनडायरेक्ट हिंट दे रहा है डाउरी के लिए. ठीक है, तो ये तो वायोलेट कर रहा है. और रीजन है इनडायरेक्ट डिमांड जो है वो डाउरी में इंक्लूड होता है क्योंकि वो रूल्स में है. जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट देखिए 1961 सेक्शन 28. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26, यहां पर भी असर्शन रीजन है स्त्री धनम अमंग क्रिस्टियंस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डाउरी. ये तो गलत है, स्त्री धनम डाउरी में इंक्लूड होगा. द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एक्सक्लूड्स all religious customary payments from the definition of dowry. Dowry Prohibition Act, all religious customary payments from the definition of dowry. ये दिया है जो रीजन, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एक्सक्लूड्स ऑल रिलीजियस कस्टमरी पेमेंट्स फ्रॉम द. नो, ये गलत है. जितना रिलीजियस कस्टमरी पेमेंट्स होता है, ओके, वो सब डाउरी में इंक्लूड होता है. ये कैसे एक्सक्लूड कर दिया? सब इंक्लूड होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी रिलीजियस कस्टमरी पेमेंट्स मीन्स होता है वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में डाउरी में इंक्लूड होता है. तो दोनों गलत है. ए इज फॉल्स एंड आर ऑल्सो फॉल्स. ऑप्शन डी करेक्ट 1. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27, यहां पर भी असर्शन रीजन है. ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी पनिश्ड इवन इफ द डिमांड फॉर डाउरी इज मेड बाय हिज फैमिली मेंबर्स without his direct involvement. करेक्ट है, absolutely करेक्ट है. रीजन, द रूल अप्लाइज इवन व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट साइलेंटली सपोर्ट्स और एग्रीज टू द डिमांड मेड ऑन हिज बिहाफ. ये भी करेक्ट है. ओके, तो आप और किसका हेल्प लेके डाउरी डिमांड कर रहे हो तो ये तो आप वायोलेट कर रहे हो. तो आपको, आपके ऊपर तो ये तो पनिशमेंट है, तो आप वायोलेट कर रहे हो कंडक्ट रूल को. और एक नेक्स्ट है, आप साइलेंटली सपोर्ट कर रहे हो डाउरी को. तो रीजन तो इस असर्शन का ये तो करेक्ट रीजन नहीं है, दोनों अलग है. बोथ आर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28, असर्शन है रीजन है डायर ऑफ महार अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ इज ट्रीटेड एज डाउरी. ये गलत है, ये डाउरी में इंक्लूड नहीं होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ में, मैं बोल चुका हूं. रीजन, महार इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू द ब्राइड बाय हर हस्बैंड अंडर रिलीजियस लॉ. ये करेक्ट है. तो इसमें क्या है, असर्शन ए फॉल्स बट आर इज ट्रू. ओके, ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. ए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29, under rule 13A, government servant will be guilty of misconduct if he demands dowry directly from the bride's parents. होगा. ठीक है, मिसकंडक्ट है. he hints that he expects gold and cash. ये भी मिसकंडक्ट है. his uncle demands dowry on his behalf. ये भी मिसकंडक्ट है. he silently agrees to the dowry demand. ये भी मिसकंडक्ट है. तो चारों तो मिसकंडक्ट है. तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ये सभी केस मिसकंडक्ट है. ठीक है. आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए. डाउरी इंक्लूड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी व्हिच इज एन एग्जांपल. लैंड डॉक्यूमेंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, शेयर सर्टिफिकेट्स, ऑल ऑफ द अबव. यहां पर आंसर ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो ये 30 क्वेश्चंस था. पैटर्न आजकल जिस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है मैं डिस्कस किया. ठीक है. लास्ट में कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख लीजिए ये तीनों रूल के ऊपर. फर्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स अंडर रूल 12. ये सब्सक्रिप्शन रिलेटेड है. रिगार्डिंग रेजिंग सब्सक्रिप्शंस और कंट्रीब्यूशंस, व्हाई आर सच रेस्ट्रिक्शंस कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर पब्लिक सर्विस इंटीग्रिटी. आप ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शंस अंडर रूल 12. व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज फॉल अंडर रेजिंग फंड्स इन कैश और काइंड. प्रोवाइड सुइटेबल एग्जांपल्स. ओके, तो सब्सक्रिप्शंस का मीनिंग देना है और व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज फॉल अंडर रेजिंग फंड्स इन कैश और काइंड. तो कुछ एग्जांपल, फ्लैग डे, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, नेशनल डिफेंस फंड, इसका एग्जांपल देना है. एक्सप्लेन द जनरल प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स अंडर रूल 13. तो एक्सप्लेन द जनरल प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स आप पूरा डिस्कस कर चुका हूं.
व्हाई इज सच ए प्रोहिबिशन एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विसेज, इसको पॉइंट देकर लिख सकते हो, ठीक है। डिफाइन द टर्म गिफ्ट एज पर रूल 13, इसको भी डिफाइन में कर चुका हूं। हाउ डज एक्सप्लेनेशन टू द रूल वाइडन द स्कोप ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए गिफ्ट, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स, क्या गिफ्ट्स में काउंट होगा, क्या गिफ्ट्स में काउंट नहीं होगा, बोल चुका हूं इसको, ठीक है। आप वीडियो देख लीजिए, सब आंसर आप मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज कंसिडर्ड एज ए गिफ्ट एंड व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड ए गिफ्ट। तो किसको गिफ्ट बोलेंगे, कौन सा गिफ्ट इंक्लूड नहीं होगा। ओके, गिफ्ट में व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड ए गिफ्ट, जैसे आप सपोज एग्जांपल दिया था, क्या गिफ्ट में काउंट होगा, क्या गिफ्ट में काउंट नहीं होगा। मैं आपको बताया था कि जैसे कैजुअल मील, कि आपको कोई सोशल हॉस्पिटैलिटी अमंग द फ्रेंड्स, तो ये सब एक्चुअली गिफ्ट में ये इंक्लूड नहीं होगा। और क्या है, सपोज आप बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी की, ट्रांसपोर्टेशन की, लिफ्ट फैसिलिटी यू आर गेटिंग फ्रॉम योर नियर रिलेटिव्स और फ्रॉम योर क्लोज फ्रेंड्स, ये भी गिफ्ट में काउंट नहीं होगा। मैं बोला था उसको, आप देख लीजिए। डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे एक्सेप्ट गिफ्ट्स ऑन सोशल और रिलीजियस ओकेजन्स, व्हाट लिमिट्स, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ रूल 13(2) में। डिस्क्राइब द मॉनेटरी लिमिट्स एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर एक्सेप्टिंग जनरल गिफ्ट्स, जनरल गिफ्ट रूल 13(3) में डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ रूल 13(a), ये तो डाउरी रिलेटेड है, रिगार्डिंग द प्रोहिबिशन ऑफ गिविंग, टेकिंग और अवेटिंग डाउरी बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स, व्हाई इज सच ए ब्लैंकेट बैन एसेंशियल फॉर एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी आप लिख सकते हो। Discuss the responsibility of a government servant when members of his family demand dowry. Can he be held accountable even if he is not directly involved? Yes. Explain with reasons. जैसे आप डायरेक्टली डिमांड, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कुछ हिंट्स, प्रेशराइज, तो वो सब डाउरी में जाएगा। और क्या है, आप आपका क्लोज रिलेटिव का हेल्प लेकर डाउरी डिमांड कर रहे हो, और आपका क्लोज फ्रेंड का हेल्प लेकर डाउरी डिमांड कर रहे हो, और क्या है, आप साइलेंट, डाउरी डिमांड हो रहा है, आप साइलेंट हो, ये सब वायोलेशन में जाएगा, ओके, मिसकंडक्ट में जाएगा। तो ये क्वेश्चंस था, जैसे ये सब आंसर में पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से मैं डिस्कस किया। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for my upcoming videos. Please till end you just see the video, you can get complete information, and it is easy for you to face MCQs and also to attempt descriptive questions. आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।